students in this program. Actually, it started in a very interesting way. One day, I was traveling with Dr. Sandeep Tiwari in car to Patna, and he asked me what more we can do for our engineering college. And I suggested that we can take many small steps, baby steps, to enhance the academic content of our curriculum. And one of such things can be we can enhance the general knowledge, general awareness of our technology students about developing technology world over. And through that discussion in car, just few days ago, I think 10-15 days ago, we created this program and we named it Tech Next. You know that I work with Anadi Foundation, and Anadi Foundation collaboration with Darbhanga Engineering College, whose dynamic principal, Dr. Sandeep Tiwari, is always out there to start new programs, to start new things in this college. So he accepted my proposal, and I suggested that engineer Animesh Mishra, who is architect, uh, senior system architect at NVIDIA, should be invited for this seminar to begin with. Also, because I know him and we have a certain comfort level. So once this program gets established, we can bring in more people. But in this program, we chose to work with Animesh Mishra, who has experience of almost 30 years in system architecture. He is the alumni of the Delhi College of Engineering, and he has been a very good student. I think he has been working. He worked in, or is he from Delhi, IIT Delhi? Yes. Am I wrong? Yes, you are from IIT Delhi. His father was principal of the engineering college. His father was principal of engineering college, Delhi Engineering College. He was alumni of the IIT Delhi, and then he worked many years in Intel, and he carries a lot of experience in the sector. He has been, involved in many designs. For example, he told me that he was involved in designing of Alexa, which later on NVIDIA sold to Amazon. So he is part of that team which developed Alexa and technology like that, which is famous world over. I am very happy that Animesh ji accepted our request, and he has his own story. He has his own journey. With this, his life experiences. Since this is first program, I'm really sorry that we are still struggling with our sound system and relay system, but soon it will be in order. I invite now Animesh ji to start the talk and bear with us, even if there are some technical glitches. He can start with his own story, and then we will go ahead with the technical side of his experience. Thank you. Over to you, Animesh ji. Thank you very much, Pradeep ji, for such a wonderful introduction. And also, I would like to thank Dr. Tiwari for his, words, on me.
really grateful for those kind words. Um, uh, I do not know if my audio is coming out clear to you, or is it broken? If the audio is not clear, please indicate to me somehow. I'll pause. And if the audio is good, I'll continue. Does that sound like a plan? Audio is very good for me, Animeshji. Okay, thank you very much. So I'll now switch into Hindi, and pardon me if I get into some lines in English. I was told for the benefit of students, I should use Hindi language and chart from. तो शुरू करते हैं. तो सबसे पहले आप सब लोगों को शुभ प्रभात, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं जैसी भी हों. और डॉक्टर तिवारी का, प्रदीप जी का, अनादि फाउंडेशन का, सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये जो आप लोगों ने मिल के कदम उठाया है, ये बहुत काबिल तारीफ कदम है. जब मैं हिंदुस्तान से बाहर आया यहाँ पढ़ने के लिए अमेरिका में, तो उस समय की जो अवस्था थी एजुकेशन सेक्टर में, मैं भाग्यशाली रहा कि मैं आईआईटी दिल्ली में भी पढ़ा और आईआईटी दिल्ली के फैकल्टी में भी 2 साल मैं रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में. लेकिन तब भी मैंने यही डिसीजन लिया कि मुझे बाहर आके कुछ करना चाहिए. उसके बाद से मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान ने बहुत तरक्की की है. बहुत हिंदुस्तान के बच्चे लोग यहाँ आके उन्होंने नाम कमाया है. बहुत लोग आगे बढ़े हैं. और आज के डेट में बिजनेस सेक्टर में गूगल ले लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट ले लीजिए, सिटी कॉरपोरेशन ले लीजिए, आईबीएम ले लीजिए. दुनिया की करीब 25-30 बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ आजकल हिंदुस्तानी हैं. तो कुडोज टू देयर हार्ड वर्क, कुडोज टू देयर एजुकेशन. और उनके पीछे जितने शिक्षक लोग थे उनको बनाने के लिए उन सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम. इसी कड़ी में मैं आप सारे शिक्षक लोगों को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और तरह तरह की इस तरीके की चीज़ों को खोज के ला रहे हैं, जिससे ये पता चले कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ सकें. तो इसमें इस शुभ कार्य में जो भी मेरा योगदान रहेगा, मैं पूरी देने की कोशिश करूँगा. आज का जो है सेशन ये शुरू करने के लिए है, और डिटेल में यदि कभी और भी बुलाया जाएगा तो मैं उसमें अपना समय बच्चों की बेहतरी के लिए ज़रूर देना चाहूँगा. मैंने ये भी देखा कि कुछ बच्चों को शायद मेरा नाम पता चला, या कुछ तो लिंक्डइन पे उन लोगों के मैसेज आने शुरू हो गए कि थोड़ा कनेक्ट हो जाएं, जो कि अच्छी बात है. तो फील फ्री, यदि मैं किसी भी तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकूं तो मैं ज़रूर करूँगा. तो प्रदीप जी ने ये कहा कि मुझे कहा गया था कि थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में मैं बच्चों के साथ शेयर करूं कि कैसे क्या कुछ मैंने किया है, या मैं क्या था और कहाँ से कहाँ कैसे पहुंचा. शायद ये सुन के उन लोगों में कुछ जोश पैदा हो, उन लोगों में कुछ करने की इच्छा जागृत हो. तो उससे मैं शुरू करता हूँ. लेकिन सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बचपन में मैं बहुत बेवकूफ़ था. पढ़ने लिखने में वैसे मेरा मन नहीं लगता था. लेकिन जिसे बोलते हैं कि हर आदमी की लाइफ में कभी ना कभी कोई एक कैटालिटिक फैक्टर होता है जिससे कि वो प्रेरित हो जाता है.
तो आप सब लोग अपने अगल बगल में देखिए कि आपकी प्रेरणा का क्या स्रोत हो सकता है। क्या वो आपके गुरुजन हैं? क्या वो आपका साथी है? क्या वो आपके घर में कुछ लोग हैं जो शायद आगे बढ़ गए हैं, तो उनको देख के शायद आप में प्रेरणा जागृत होती होगी? या आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है हमेशा कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे? ये इन इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के की आप कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हैं जो कि एक कैटलिस्ट का काम करती हैं और वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। और जब मैं पढ़ रहा था, स्कूल में था, दिल्ली के एक सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ, कोई बहुत बड़े स्कूल से नहीं पढ़ा हूँ। स्कूल का नाम था गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, लुडलो कैसल। ये दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित सरकारी स्कूल था, शायद आज भी है। अ, तो वहीं से मैंने अपनी 12वीं की कक्षा पास की। तो उसमें एक हमारे संस्कृत के टीचर थे, अब वो नहीं रहे, पंडित गिरिजा प्रसाद। तो वो 10वीं तक मैंने संस्कृत पढ़ा। तो वो जब भी आते थे क्लास में, तो वो एक श्लोक जरूर सुनाते थे जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। शायद आप लोगों ने सुना हुआ है, लेकिन मैं फिर भी सुनाना चाहूंगा। और वो एक मंत्र की तरह हम लोगों के ऊपर उसने काम किया, कई बच्चों के। तो वो था, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका मतलब ये है कि आप उद्यम करते रहें, मेहनत करते रहें और फल की चिंता ना करें। यदि आप सिर्फ मेहनत नहीं करेंगे और सिर्फ कामना करेंगे किसी चीज को पाने की, तो वो कभी आपके हाथ में नहीं आएगा। जैसे कि शेर के मुंह में कभी हिरण नहीं जाता है, उसको मेहनत करनी पड़ती है अपना शिकार पकड़ने के लिए। तो आपका जो फ्यूचर है वो आपका शिकार है, आप उसके पीछे दौड़ रहे हैं, आपको वो जाके पकड़ना है। अब उसको कैसे पकड़ना है, ये एक जटिल समस्या है, और इसके लिए काफी लोगों का योगदान आपको चाहिए, प्रोत्साहन चाहिए, और हर तरीके से जिसको गाइडेंस बोलते हैं उसकी जरूरत होगी। तो जितने ये अनुभवी गुरुजन आप लोगों के साथ हैं, ये आपको वो मार्ग दिखाएंगे, और उस मार्ग पे चलने के साथ साथ जो भी होगा, तो अनादि फाउंडेशन जैसे कार्यकर्ता लोग हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को मोटिवेट करके यहाँ जरूर लाएंगे आप लोगों के साथ बात करने के लिए, जैसे कि आज मैं आया हूँ। तो 12वीं क्लास मैंने किसी तरीके से वो किया। 8वीं तक तो मैं बिल्कुल ही बेवकूफ था। लेकिन 8वीं क्लास में मैंने ये देखा कि एक मेरा साथी, वो एक साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप होती है, तो साइंस टैलेंट स्कॉलरशिप वो जीत गया और उसको 10 रुपए महीना वजीफा मिलता था। और उसके पिताजी, मैं इस शब्द का गलत प्रयोग नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यदि मैं देखूं कि मेरे पिताजी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर थे और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, उनके पिताजी उतने पढ़े लिखे नहीं थे, और उसने साइंस टैलेंट का वजीफा जीत लिया। तो उससे मेरे दिमाग में एक स्पार्क आया कि यदि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। और वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। तो वहां से जो मेरी जर्नी शुरू हुई, तो फिर मैंने भी साइंस टैलेंट का स्कॉलरशिप जीता। और उसके बाद 12वीं क्लास में जो बोर्ड का एग्जाम होता है, उस बोर्ड में मैं अपने स्कूल में टॉपर भी बना। लेकिन ये सब मेरे पीछे बहुत सारे गुरुजन थे जिन लोगों ने उस चीज को समझा और मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। एक हमारे गुरुजन थे जो हम लोगों को गणित पढ़ाते थे, अ, अ, श्री आर आर गर्ग। और वो इतने डेडिकेटेड थे, हम लोग 19 बच्चे थे क्लास में साइंस में। तो
इन 19 बच्चों में से यदि किसी एक भी बच्चे से कोई सवाल, कोई कैलकुलस का हो, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का हो, कहीं किसी का हो जो कि 10+2 में 12th क्लास में उस समय पढ़ाया जाता था, वो हम लोगों को कॉलेज के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का इक्वेशन 12th क्लास में सॉल्व करवाते थे, आगे अपने लेवल से बढ़ के। और यदि कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाता था तो वो उसको डांटते नहीं थे, बल्कि वो खुद रोने लग जाते थे कि मेरे पढ़ाने में क्या कमी रह गई कि तुम इस प्रश्न को का उत्तर नहीं दे पाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों को का सौभाग्य था कि हम लोगों को इस तरीके के गुरुजन मिले जिन्होंने कि हम लोगों के ऊपर बहुत मेहनत की, और उससे फिर हम लोग सब प्रेरित हुए। तो आप लोगों के अगल बगल में भी आप देखिए कि किससे जाके आप समझ सकते हैं, कौन आपको इस तरीके से समझा सकता है। अ, और यदि उन सब के करने से जितने भी आप लोग हैं उनमें से यदि 5 भी आगे निकल गए तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी, जिसको बोलते हैं कि एक शिक्षक का जो जीवन है वो सफल हो जाएगा, और जो स्टूडेंट है वो आगे चल के अ, काफी तरक्की करेंगे। कोई बोल रहे हैं कि ऑडियो क्लियर नहीं है, तो क्या मैं यहाँ रुक जाऊं? Sir, you are clear. Voice is clear. ओके, आई कंटिन्यू दैट। ओके, तो फिर मैं दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से मैंने अपना बैचलर्स किया, बीटेक। उसके बाद मैं 1 साल के लिए डीआरडीओ में मैंने काम किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो 1971 में इंटेल नाम की कंपनी थी जिसने कि 4004 एक माइक्रो प्रोसेसर बनाया था। और जब मैं 12वीं कक्षा में था तो मेरे फादर एक घर में कुछ लेके आए, एक ब्लू से रंग का डब्बा था, उसके ऊपर इंटेल लिखा हुआ था। ये 1979 की बात है, 80 की बात है। और उस पे किसी एक बहुत बड़े, आज की डेट में मैं कह सकता हूँ कि एक बहुत बड़े इंटीग्रेटेड सर्किट की फोटो बनी हुई थी, और उस पे कुछ माइक्रो प्रोसेसर वगैरह लिखा हुआ था। तो वो डब्बा देख के मेरे मन में एक उत्सुकता सी हुई कि ये क्या चीज है। और 1979-80 में यदि अमेरिका से कोई चीज आपके घर में आए, उस समय जो आती थी, तो एक कुतूहल सा जो है, कौतूहल होता था दिमाग में कि वेरी सरप्राइजिंग थिंग, ये है क्या चीज। तो वो इंटेल का 8080 माइक्रो प्रोसेसर किट था। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने कहा ये क्या चीज है। और फिर मेरे दिमाग में एक स्पार्क आया कि ये तो कुछ अजीब सी चीज लगती है, ये पता करना पड़ेगा कि ये क्या चीज है। तो इसलिए मैं हालांकि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन मैं इंजीनियरिंग में चला गया सिर्फ उस चीज को पढ़ने के लिए कि वो है क्या चीज। खैर, एनीवे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जब मैं डीआरडीओ पहुंचा तो उस समय डीआरडीओ में लोग बहुत सारा काम मैन्युअली करते थे, टेलीप्रिंटर से कुछ सिग्नल्स वगैरह आते थे। तो मैंने वहाँ के जो डायरेक्टर साहब थे उनको कहा कि ये देखिए, आप इसमें 1 हफ्ता लगाते हैं और 1 हफ्ते में करीब 2 पेज आप डिकोड कर पाते हैं, कि वो मैन्युअली सारा काम था, लोग हाथ से करते थे, बहुत स्लो करते थे। तो क्यों ना मैं इसमें एक टेक्नोलॉजी लगाऊं और इसको स्पीड अप करने की कोशिश करते हैं। तो फिर भाग्य ने साथ दिया, और वो डायरेक्टर साहब जो हैं, बहुत उन्होंने इस चीज को सराहा। और उस समय फिर डीआरडीओ में मैंने एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड टेप रीडर बनाया है, जो कि डीआरडीओ ने करीब 10-15 साल तक यूज किया। उसके बाद तो फिर कंप्यूटराइजेशन हो गया था, वो चीज़ ऑब्सोलीट हो गई। तो ये कहानी बताने के पीछे ये है कि आप हमेशा अपने अगल बगल में चीज़ों को देखें कि ये क्या हो रहा है। जैसे बोलते हैं कि
नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वही इस चीज को आप अपनी लाइफ में डिप्लॉय कीजिए। वो ये देखिए कि आपके अगल बगल में क्या चीज है जिसको कि आप अपने नॉलेज के हिसाब से उसको और बेहतर कर सकते हैं, और वो आपके दिमाग में और अलग अलग तरीके की सोच को पैदा करेगा। वो बहुत जरूरी है एक टेक्निकल ब्रेन के लिए, एक इंजीनियर के लिए, खासकर जो लोग कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन में जा रहे हैं, इवन मैकेनिकल कोई भी ले लीजिए, वो सोच बहुत जरूरी है। तो वो सोच पैदा करने की जरूरत है। तो वो सोच किसी तरीके से पैदा हुई तो काम हो गया। जब काम हो गया तो आईआईटी दिल्ली में एक प्रोफेसर साहब थे, प्रोफेसर लांबा, उनकी नज़र मुझ पर पड़ी। तो उन्होंने कहा कि ये बच्चा वहाँ क्या कर रहा है डीआरडीओ में माइक्रो प्रोसेसर्स के ऊपर, उसको तो यहाँ होना चाहिए। तो फिर मैं आईआईटी दिल्ली चला गया। तो आईआईटी दिल्ली में मैं मास्टर्स कर रहा था, और उस समय ये 1984 की बात है, 85 की बात है। तो हिंदुस्तान में माइक्रो प्रोसेसर का आगमन हो चुका था। थोड़ी कुछ कंपनियां ये काम कर रही थी, लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह हैं, उसमें माइक्रो प्रोसेसर की पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा नहीं होती थी। तो फिर प्रोफेसर लांबा और दो चार और लोग थे, उन लोगों के साथ मिलके हम लोगों ने एक प्लान बनाया। उसका नाम था माइक्रो प्रोसेसर एप्लीकेशंस प्रोग्राम, कि हिंदुस्तान के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टीचर्स को कैसे माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ाया जाए, और ताकि वो जाके अपने बच्चों को पढ़ा सकें। उस समय एक डिफिकल्टी थी। डिफिकल्टी ये थी कि आईआईटी में तो बजट काफ़ी होता था, लेकिन जितने रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या उससे और स्टेट लेवल के कॉलेज हैं, उनमें बजट उतना ज़्यादा नहीं था। और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें कि आपको इक्विपमेंट काफ़ी चाहिए। तो ये एक छोटा सा वाकया मैं बताता हूँ आप सब लोगों को, और मैं उम्मीद करता हूँ कि दरभंगा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसी परेशानी नहीं है, और यदि है तो मुझे बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू बहुत सारी चीज़ें करवाई जा सकती हैं। तो पटना इंजीनियरिंग कॉलेज से 3 प्रोफेसर साहब आए थे, और हम लोग के लैब में घूम रहे थे। तो उन्होंने कहा कि ये सब करने में कितना लगेगा। तो 1984 का वाकया है, तो हमने कहा करीब 5 लाख रुपए लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि हमारा सालाना बजट पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का 75,000 रुपए है, ये बताइए कि इसमें ये काम कैसे होगा। तो आईआईटी दिल्ली से फिर उनको कुछ ग्रांट दिलवाया गया, कुछ माइक्रो प्रोसेसर किट्स फ्री में दिए गए, एक आध ऑसिलोस्कोप फ्री में दे दिया गया। तो उस तरीके से कुछ बातें चल पड़ी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि वो 3 लोग आए, उन लोगों ने इस चीज़ को समझा, और अपने डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए उन्होंने कोई संकोच नहीं किया कि कहाँ से क्या चीज़ मिलेगी, कैसे मिलेगी। ये उनके स्टूडेंट्स की एजुकेशन का सवाल था। तो वो गए। उसके बाद करते करते मेरे दिमाग में आया कि उस समय एक चीज चलती थी, उसका नाम था एक्सपर्ट सिस्टम्स। आज की डेट में जो आप मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बात सुन रहे हैं, तो 1984 में ऐसा कुछ नहीं था। 1984 में 85 तक में एक एक टर्म था जिसको बोलते थे एक्सपर्ट सिस्टम्स। एक्सपर्ट सिस्टम्स क्या था कि कुछ नॉलेज बेस्ड डिसीजन की, उस समय ये डेक 20, HP का माइक्रो पीडीपी कंप्यूटर्स, और DCM इंडिया में कुछ कंप्यूटर्स वगैरह बना के बेच रहे थे। तो अब वो जो एकेडमिया में लोग थे जो रिसर्च कर रहे थे, वो लोग एक्सपर्ट सिस्टम पे काम कर रहे थे। उसके पीछे मेन चीज यही था कि क्या हम कंप्यूटर को यूज कर सकते हैं कुछ डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि लोग किताबों को काफी उनको करना पड़ता था, याद रखना पड़ता था कि कौन सी किताब में क्या है क्या नहीं है। तो ये 1984 की बात बता रहा हूँ कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी में, बर्कले, MIT, फ्यू प्रोफेसर्स ऑफ इवन IIT दिल्ली,
ये सब आईआईटी कानपुर, ये लोग सब इसमें इन्वॉल्व थे कि एक्सपर्ट सिस्टम क्या चीज है, इसको कैसे बनाया जाए। बट मोस्टली सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड वो चीज था, वेरी मिनिमल, बहुत ही कम टॉपिक्स को वो सर्च कर पाता था, लेकिन लोग उस डायरेक्शन में जा रहे थे। और मुझे नहीं पता था कि ये एक्सपर्ट सिस्टम आज जो मैं ये पढ़ रहा हूँ कुछ सालों के बाद शायद मैं इसी पे काम करना शुरू करूँ। अगेन क्यूरियोसिटी, ये क्या चीज है, इससे क्या फायदा होने वाला है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं, दैट थिंग हिट माय माइंड। तो एक्सपर्ट सिस्टम और रोबोटिक्स को लगा के हम लोगों ने वहाँ के लैब में कुछ काम करना शुरू किया। जब ये काम होना शुरू हुआ तो कुछ लोगों को पता चला कि ये कुछ बच्चे हैं, ये कुछ इस तरीके का काम कर रहे हैं। तो उन सब लोगों ने जो है हम लोगों को वो एक हम लोग का काम करने का जो वो था, उससे हम लोग को एक यूएस आने का रास्ता खुल गया कि ये जो काम किया है ये जनरली वो ऐसा लोग नहीं करते हैं, तो देयर मस्ट बी समथिंग। तो उससे करते हुए फिर मैं यहाँ यूएस आ गया, अमेरिका आ गया। लेकिन आप लोगों को मैं एक बात सुनाना चाहूंगा जो कि अ, अ, पिछले साल जब मैं प्रदीप जी से मिला था तो मैंने उनको बताया कि देखिए, और तिवारी जी ने भी कहा कि बिहारी लोग जहाँ हैं उन लोगों ने अच्छा काम किया है। ये बात सत्य है। अ, उधर दरभंगा के ही अगल बगल में ये पटना, सॉरी पटना के बगल में एक जगह है हाजीपुर। तो हाजीपुर से एक अब वो नहीं रहे, डॉक्टर नरेंद्र प्रसाद द्विवेदी, वो जब वो यूएस सिटीजन बन गए तो उन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया। उन्होंने अपना नाम डॉक्टर नील पंडित रख लिया। तो ये जितने भी स्पेस प्रोग्राम में रॉकेट्स और इंटरस्टेलर सैटेलाइट्स और ये सारी चीजें जाती हैं, तो वो कब एक ग्रेविटेशनल फील्ड से दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड में जाएगा और उसकी क्या ट्रेजेक्टरी होगी, और कब वो पूरा कंट्रोल ट्रांसफर किया जाएगा एक स्पेस व्हीकल से दूसरे स्पेस व्हीकल को, उसका जो एल्गोरिथम है वो डॉक्टर द्विवेदी का बनाया हुआ है, जो आज तक चेंज नहीं हुआ है। जो अपोलो मिशन गया था उसके लिए जो उन्होंने वो एल्गोरिथम लिखा था, वो एल्गोरिथम आज तक चेंज नहीं हुआ है। एंड ही वॉज ए बिहारी। तो आप ये देख सकते हैं कि उनका इस चीज पे कितना इम्पैक्ट रहा है, और आप सब लोगों को गर्व होना चाहिए कि वो उधर से ही है। खैर, ये एक छोटी सी कहानी है। फिर मैं इंटेल में काम करने के लिए आया। तो जब इंटेल में काम करने के लिए आया तो उस समय चीजें चल रही थी, और 286, 386, 486 तरीके का माइक्रो प्रोसेसर सब बन रहा था, 586 पेंटियम। तो इंटेल में करीब 20-22 साल तक मैं रहा। कुछ फंडामेंटल टेक्नोलॉजी में भी मेरा योगदान रहा। लेकिन इन सब चीजों के पीछे वही है कि क्या कुछ इस तरीके से किया जा सकता है जो कि आ, आ, एक एग्जिस्टिंग प्रोसेस को ज्यादा एफिशिएंट बनाए। तो जैसे मेरा एक पेटेंट है इंटेल में, प्रोबेबली द मोस्ट वैल्यूड पेटेंट एट इंटेल इज लोड शेयरिंग बिटवीन मल्टीपल सीपीयू कोर्स। उस समय लोग मल्टीपल सीपीयू कोर्स लगा रहे थे, लेकिन वो नहीं था कि कैसे जो वर्कलोड है उसको कौन से सीपीयू कोर पे डायरेक्ट किया जाए। तो मैं गांव से हूँ, तो मैंने ये देखा कि कई बार जैसे कि हम लोग के गांव देहात में होता है ना कि बैल को लगा देते हैं बैलगाड़ी में, और एक बैल जो है थोड़ा स्ट्रांग था और एक बैल थोड़ा कमजोर था। तो जो स्ट्रांग वाला बैल था वो बैलगाड़ी को एक डायरेक्शन में ले जा रहा है, जो कमजोर वाला है वो थोड़ा पीछे है, तो उसको मार ज्यादा पड़ती थी।
तो वो उससे मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि ये जो मल्टीपल कोर्स हैं सीपीयू के, आज की डेट में 2 है 4 है, मतलब ये 1999 2000 2001 की बात है। आज की डेट में जो भी प्रोसेसर कोर्स हैं, जैसे एनवीडिया का जो भी कोर है, दे हैव मल्टीपल कोर्स, 180 200 256, बहुत ज्यादा कोर्स हैं। उस समय 3 या 4 कोर होते। तो कोई भी वर्कलोड आप करें तो उसको हम कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तो उसकी उसकी उसके ऊपर हम लोगों ने रिसर्च किया और ये देखा कि ठीक है, एक कोर जब काम करना शुरू करे तो थोड़ी देर में वो कोर गर्म हो जाता है। तो जैसे ही वो गर्म हो, और इसके पहले कि वो अपनी थर्मल लिमिट को क्रॉस करे, वो सारा वर्कलोड दूसरे कोर पे डाल दो जो ठंडा है, और इसी तरीके से राउंड रॉबिन मोड में उसको चलाते चलो। तो उससे फायदा हम लोग को ये हुआ कि एक तो जो काम करने में, अब मैं ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, जो काम करने में 1 घंटा लगता था, अब वो काम 10 मिनट में हो जा रहा था। ओके, क्योंकि पहले 1 घंटा इसलिए लगता था कि बहुत सारे कोर्स गर्म हो जाते थे, फिर वो ठंडा होना शुरू होते थे, फिर शुरू होंगे। और ये जब वर्कलोड स्पैन हो रहा था उसके ऊपर, तो एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई, ऑलमोस्ट 10x एफिशिएंसी उसकी बढ़ गई। तो अगेन मैं फिर वो कहूंगा कि अपने अगल बगल की चीजों को देख के और उससे यदि आप कुछ सीखें और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करें, तो उससे बहुत तरीके की चीजें इजाद हो सकती हैं। अब उसके बाद फिर जैसा मैंने बताया, एक्सपर्ट सिस्टम्स 1984 में हो रहा था। तो 2010 में, अब आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जब वो था तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में इतना टाइम क्यों लगा। उसके पीछे एक फंडामेंटल रीजन है। फंडामेंटल रीजन ये है कि जब तक कोई टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर ना हो जाए कि वो एक थ्रेशोल्ड को, जैसे कि मान के चलें, थ्रेशोल्ड जिसको बोलते हैं कि उसकी जो कीमत है या कितना वो पावर लेगा या कितना वो स्पेस लेगा, जब तक कि वो एक मैनेजेबल उसमें ना आ जाए, फॉर्म में ना आ जाए, तब तक वो रिसर्च मोड में रहती है। तो लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर, लेकिन वो टेक्नोलॉजी उससे पहुंची नहीं थी। लेकिन 2000 में जो सेमीकंडक्टर नोड है वो इतना छोटा हो गया, इट केम टू 65 नैनोमीटर। उसके पहले वो 130 नैनोमीटर था। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मशीन लर्निंग का काम उस समय हम लोग करना चाह रहे थे, उसके लिए हम लोगों को एक 10 फीट बाय 10 फीट का जो कमरा है, उस पूरे कमरे में हम लोगों को भरना पड़ेगा कंप्यूटर से, तब जाके कुछ काम हो सकता था। तो इमेजिन कि वो बड़ा अनमैनेजेबल सिनेरियो था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी 65 नैनोमीटर नोड पे आ गई, तो ये देखिए, ये शायद आप लोगों को नजर आए, ये नजर आ रहा है। ये 65 नैनोमीटर पे एक चिप है जो Yes, sir. जिसको हम लोगों ने बनाया था। इस चिप में करीब 500 मिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। तो अब क्या हुआ कि ये चिप बनने के बाद वो जो पूरे रूम में कंप्यूटर थे वो घट के एक हथेली के ऊपर आ गए ना। अब ये पॉसिबल है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को कैसे एक लोगों की लाइफ में ला सकते हैं, बिकॉज नोबडी नोबडी बॉदर्स फॉर ए पाम साइज कंप्यूटर। लेकिन यदि वो 70-80 पाउंड की चीज हो तो पीपल विल नॉट यूज इट। तो वहां से फिर ये जर्नी शुरू हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और हमने देखा कि अब इसको मैन मशीन इंटरेक्शन कैसे होगा। तो उसमें आज की डेट में भी है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि आप जब अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ करते हैं इंटरेक्शन, तो इट इज यूजुअली थ्रू टाइपिंग और मूविंग ए माउस। तो मैन मशीन इंटरेक्शन बहुत लिमिटेड है।
आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग रिसर्च कर रहे हैं इसके बारे में। हमारी कंपनी में भी रिसर्च हो रहा है, कुछ चीजें बनी भी हैं और कुछ कुछ के ऊपर काम होगा कि जो एक नेचुरल चीज है संवाद का, जैसे कि प्रदीप जी ने एलेक्सा बताया जिसके ऊपर हम लोगों ने काम किया इंटेल में। तो ये देखा कि देखिए आदमी सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में टाइप करने की बजाय बोलता है। तो ये स्पीच रिकॉग्निशन, वॉइस बेस्ड कमांड्स, वॉइस बेस्ड असिस्टेंट्स, ये कैसे बनाया जाएगा, क्या प्रोसेसिंग की जरूरत है, क्या टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो सबसे पहले फिर वही हुआ कि ये एक नेसेसिटी है और हम इस चीज को कैसे करें। तो 65 नैनोमीटर जो नोड मैंने बताया आपको, ये 65 नैनोमीटर नोड पे जो चिप बनी, ये इस नोड पे एक स्पीच प्रोसेसिंग करना और वो संभव नहीं था। तो उसके लिए फिर हम लोगों को थोड़ा और टाइम वेट करना पड़ा, जबकि टेक्नोलॉजी 65 नैनोमीटर से घटते 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 28 नैनोमीटर पे पहुंच गई और 28 नैनोमीटर के बाद 22 नैनोमीटर पे पहुंच गई। तो यदि आप लोगों में से किसी ने एलेक्सा का कंपोनेंट देखा है अमेजोन का, तो उस एलेक्सा के अंदर जो चिप है वो ये है, शायद नजर भी नहीं आएगा, इतना छोटा है। इसको अंगूठे के ऊपर यदि मैं रखूं तो इस ये चिप देखिए। Yes, sir. Now it's visible. हाँ, तो ये जो चिप है ये फुल वॉइस असिस्टेंट चिप है जो कि आपकी आवाज को रिकॉग्नाइज करेगा और देन इट विल सेंड वॉइस बेस्ड कमांड्स टू एलेक्सा सर्वर्स इन अमेजोन, और फिर आपके जो भी कमांड्स हैं उसकी सारी प्रोसेसिंग होगी। क्योंकि जो उस समय रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट ये थी कि ये बैटरी पे चलना चाहिए, बहुत कम पावर लेना चाहिए, स्पेस, वेट, हर चीज। तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेशन होता गया, वैसे वैसे जो एकेडेमिया में लोगों ने रिसर्च किया था वो धीरे धीरे प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करते गए। तो हो सकता है कि आज की डेट में कुछ प्रोफेसर्स के साथ मिलके आप स्टूडेंट लोग भी कुछ पेपर वगैरह लिख रहे हों या कुछ रिसर्च कर रहे हों। तो वो अब पॉसिबल है। अब तो इस समय टेक्नोलॉजी 16 नैनोमीटर नोड से भी घट के अब 3 नैनोमीटर नोड पे, 2 नैनोमीटर नोड पे, और अब 1 नैनोमीटर या सब नैनोमीटर नोड पे जाने वाली है, राइट। तो इन चीजों से क्या होगा कि जो पहले मैसिव सिस्टम्स थे वो बहुत छोटे होते जाएंगे, पावर भी कम होगा और उसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी बहुत बढ़ती जाएगी। तो इस पे दुनिया में आजकल बहुत रिसर्च चल रही है और मैं चाहूंगा कि आप में से कुछ लोग जो हैं इस चीज को परसू करें, देखें कि किस तरीके से क्या हो सकता है। उसमें क्या एक चीज है जो कि आप लोग वहां पे सोच सकते हैं, उसको कर सकते हैं। इस समय भारत सरकार की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो बहुत अच्छी हैं। अब तो इंडिया में भी दो फैब, इनको फैब बोलते हैं, जिसमें कि सेमीकंडक्टर, ये जो वेफर है, सिलिकॉन वेफर है, ये सिलिकॉन वेफर अब गुजरात में बनेंगे। इसकी पैकेजिंग जो ये जो हरे रंग का आपको सबस्ट्रेट नजर आ रहा है जिसके ऊपर ये सिलिकॉन लगा हुआ है, तो ये इसको बोलते हैं पैकेजिंग टेक्नोलॉजी। वो पैकेजिंग टेक्नोलॉजी असम में कोई कोई फैक्ट्री लगाई जा रही है, जो कि मुझे पता चला है। तो ये जो पूरा चिप डिजाइन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सोशली मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और इसमें टेक्नोलॉजी इजाद करने की, तरह तरह की चीज बनाने की, और हिंदुस्तान को आगे ले जाने की बहुत संभावनाएं हैं। एक एक फैब जो लगता है, एक फैब को लगाने का कम से कम खर्चा 3 से 6 बिलियन डॉलर है। और यदि आप 3 नैनोमीटर या 2 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो कि अभी हिंदुस्तान में नहीं है, आने में टाइम लगेगा, तो वो फैब लगाने के लिए करीब 12 से 15 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की जरूरत है।
तो जब आप इतनी इन्वेस्टमेंट कहीं करेंगे तो लाजिमी बात है कि वो फैक्ट्री या फैब जो है वो 10 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। ओके, तो उस फैब को फीड करने के लिए उसके अगल बगल में कम से कम 25 से 30 हजार एंसिलरी इंडस्ट्रीज की जरूरत है कि कोई साफ पानी देगा, कोई साफ केमिकल देगा, कुछ जनरेटर्स होंगे, क्योंकि उसके अंदर जो फैक्ट्री के अंदर जो क्लीन रूम है उसके अंदर हवा एकदम क्लीन होनी चाहिए। सिलिकॉन इनगॉट्स हैं वो कौन देगा? तो अ, कम से कम 15, 20, 30 हजार छोटी छोटी कंपनियां, लोग जो हैं उसमें लगेंगे उस फैक्ट्री को फीड करने के लिए। तो जहां पे ये फैक्ट्री बनती है फैब की, उसके अगल बगल में एक छोटा सा शहर तरीके से बस जाता है जो कि इन टेक्नोलॉजीज को, उस फैब को फीड करता है। तो केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, रेडियो इंटरफेरेंस, रेडियो इंजीनियरिंग, अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, ये इन सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी अराउंड द फैक्ट्री कि कैसे 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 वो चलेगा। ठीक है। तो ये एक मेरी छोटी सी जर्नी थी जिसमें कि यहाँ तक मैंने आपको बताया। बाकी आप के पास कुछ क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछें, फिर उससे बात आगे बढ़ाएं। Sir, I have visited IIT Kharagpur in 2001. There was a lab. They were developing chip. That lab cost around 1,000 crore rupees. So still it exists. देखिए, चिप बनाने की जो लैब्स हैं वो थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन अब इन सबों का जो जो कॉस्ट है वो कम होता जा रहा है। और अब बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सिनॉप्सिस है, केडेंस है, मेंटर ग्राफिक्स है, ये सब एजुकेशनल पर्पसेस के लिए अपना जो ईडीए सॉफ्टवेयर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन जो सॉफ्टवेयर है, वो बहुत ही रिड्यूस्ड रेट पे देती है। ओके, तो अब मुझे लगता है कि उतने ज्यादा की शायद जरूरत ना हो, लेकिन मैं इस फाइनेंस के बारे में कोई अथॉरिटी नहीं हूं, तो मैं अच्छे से नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, इतना मुझे जरूर मालूम है कि जो ये सॉफ्टवेयर बहुत पहले महंगे हुआ करते थे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं खरीद पाते थे, आज की डेट में ये अवेलेबल हैं। और इन सारी कंपनियों के पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसमें कि बहुत ही कम प्राइसेस में उनको ये मिल जाते हैं। बात बाकी ये है कि आपको अपने जो लैब होगा उसमें काफ़ी पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए। ये लैपटॉप टाइप विंडोज़ नहीं, वो यूनिक्स बेस्ड सर्वर्स बोलते हैं उसको, जिसकी की ज़रूरत पड़ेगी इन सारे ईडीए टूल्स को चलाने के लिए। और विद इन इंस्टीट्यूट कुछ आईटी मैनेजर्स, सर्वर मैनेजर्स, बैक एंड सर्वर मैनेजर्स, उन सबों की जरूरत पड़ेगी जो इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे तरीके से मेंटेन करें। अनमेश जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एनवीडिया ने क्या ऐसा किया जिसके कारण कि वो इंटेल और जो पुरानी जो एएमडी पुराने प्लेयर्स थे उनसे काफी आगे निकल गया। उनके सिस्टम आर्किटेक्चर में क्या खास बात है? आप थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डालें। देखिए, एनवीडिया
ने जो किया उसके पीछे मैं एनवीडिया के जो सीईओ हैं अभी, जेनसन हुआंग, उनकी दूरदर्शिता के ऊपर उनको श्रेय देना चाहूंगा कि जो उनका एक विजन था, उस विजन के साथ और उस विजन को सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग थे जिन्होंने उनके साथ काम किया। और एक चीज जो मैं उनके बारे में कहना चाहूंगा कि जब उन्होंने ये अपनी जर्नी शुरू की, वो खुद कहते हैं कि कई बार उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और उस जो उनका विजन था उसको वो एक के बाद एक के बाद वो करते गए। और आज की डेट में आप सब लोगों ने देखा ही है कि एनवीडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। मैंने तो एनवीडिया काफी बाद में ज्वाइन किया, अभी मुझे अ, करीब 2.5-3 साल ही हुए हैं। लेकिन जब मैंने ये देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अंदर जो काम हो रहा है, मशीन लर्निंग, ऑटोनोमस ड्राइविंग, ओके, की जो क्रिएटिविटी की बात हो रही है उसमें एनवीडिया लीड कर रही है, तो मैंने सोचा कि अच्छा, अब इंटेल को छोड़ के यहाँ पे जाके कुछ सीखना चाहिए। तो मैं सीख ही रहा हूँ। आदमी अपनी अपनी लाइफ में हर रोज कुछ ना कुछ सीखता है, तो मैं भी हर रोज कुछ ना कुछ सीखता हूँ। जहाँ तक ये है कि इन्होंने क्या ऐसा किया कि जिससे ये सबसे आगे निकल गए, उसके पीछे एक मैं यही कहूँगा कि एनवीडिया का जो एक, यदि कोई आदमी ये कहे कि वो क्या चीज़ है जिससे कि एनवीडिया को सबसे ज़्यादा फायदा हो गया, तो मैं यही कहूँगा कि एनवीडिया ने जो कूडा आर्किटेक्चर के बारे में बात की थी, और उसके ऊपर उन्होंने पूरा इस तरीके से बनाया कि यदि कोई सॉफ्टवेयर एक किसी पर्टिकुलर चिप के लिए लिखा जाएगा, तो वो सॉफ्टवेयर एनवीडिया की पूरी फैमिली ऑफ चिप्स पे रन करेगा। ऐसा नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर खाली इस चिप पे चलेगा, ये सॉफ्टवेयर इस पे चलेगा। तो यदि इसको आप ध्यान से देखें तो ये एक मिस्टेक इंटेल, एएमडी, इन सब लोगों ने शुरू शुरू में काफी किया कि उन लोगों को बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर चर्न करना पड़ रहा था, उससे इंस्टेबिलिटी बहुत आ रही थी, आज भी है। एनवीडिया ने इस चीज को बहुत शुरू में ही समझ लिया, और उस एनवीडिया ने ये भी समझा कि मैन मशीन इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आने वाला है, तो ये एक दिन में नहीं होगा। दे टुक दिस डिसीजन मेनी इयर्स अगो एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट रिलेंटलेसली। यही इनकी सक्सेस का राज है। ऑडियो मिसिंग है आपका। अच्छा, हाँ, ये जो गेमिंग सॉफ्टवेयर बना रहे थे, गेमिंग प्रोग्राम बना रहे थे, उसका ये एक तरह से बाई प्रोडक्ट निकला, एक्सीडेंटल था, ऐसा है क्या? नहीं, ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये वेरी वेल थॉट थ्रू स्ट्रेटेजी है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा पहले कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है वो आप वेट करते हैं कि व्हेन इज द राइट टाइम टू इंट्रोड्यूस, कब सही टाइम है उस चीज को लाने के लिए जो कि वो टेक्नोलॉजी लोगों की लाइफ में मीनिंगफुली चेंज ला सके और फाइनेंशियली अफोर्डेबल हो। तो जो एनवीडिया का जीपीयू आर्किटेक्चर है वो तो बहुत पहले से चल रहा है, तो उन्होंने धीरे धीरे उस चीज को बिल्ड करना शुरू किया और देखा कि जो हम ये टेक्नोलॉजी बना रहे हैं इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा। तो जैसे गेमिंग में आया, तो गेमिंग में अब मैं इसको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक एनवीडिया का टर्म है, उसको बोलते हैं डीएलएसएस, डीप लर्निंग सुपर शेडिंग। तो पहले टेक्नोलॉजी क्या थी? वो टेक्नोलॉजी ये थी, जैसे मान लें आप गेम खेल रहे हैं, तो जब आप कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं, तो ये थोड़ा सा गेम ट्रिविया है। बच्चे जरूर कंप्यूटर गेम खेलते होंगे। तो एनवीडिया के पहले जो गेमिंग सॉफ्टवेयर था वो क्या करता है, जब भी आप कोई गेम खेल रहे हैं तो जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है सामने, तो बैकग्राउंड में
उस फ्रेम से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेम्स जनरेट किए जाते हैं। वो क्यों जनरेट किए जाते हैं कि जैसे कोई गेम खेल रहा है तो उसका माउस पॉइंटर या गन या जो कार है, जो भी एक ड्राइविंग फैक्टर है, वो जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर इज द पर्सन हु इज प्लेइंग गेम, वो उसको किस डायरेक्शन में मोड़ेगा वो पता नहीं, तो वो एंटिसिपेट करते हैं कि यदि वो लेफ्ट में कार गई तो कैसे फ्रेम्स जनरेट होने चाहिए, राइट में गई तो कैसे फ्रेम्स जनरेट होने चाहिए। तो वो बैकग्राउंड में वो सारे फ्रेम्स जो है कंप्यूटर जनरेट करता रहता है, और डिपेंडिंग अपॉन मूवमेंट वो उन फ्रेम्स को सामने लाके देता है। ऐसा नहीं है कि वो क्या था कि लोग ये कर रहे थे कि इट वाज सीक्वेंशियल पहले, कि ठीक है माउस अब इधर मूव करेगा देन यू जनरेट ए फ्रेम। एनवीडिया ने इस चीज को चेंज कर दिया। उन्होंने बहुत सारे फ्रेम्स को पीछे बैकग्राउंड में करना शुरू किया, और उसके बाद गेमिंग में क्या किया कि यदि आपका कंप्यूटर का रेजोल्यूशन ज्यादा है तो उस फ्रेम को जनरेट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मोर पिक्सल्स मोर टाइम, राइट। तो एनवीडिया ने, अगेन इट्स अ मैन मशीन इंटरेक्शन, जो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि मैं फुल हाई डेफिनेशन में गेम खेल रहा हूँ तो फुल हाई डेफिनेशन में फ्रेम इतने सारे जनरेट करने की जरूरत नहीं है, इट विल वेस्ट पावर, इट विल वेस्ट टाइम। व्हाट विल डू कि जो इलाका है जिसके अंदर मूवमेंट हो रही है उस इलाके में हम जनरेट करेंगे कुछ, बाकी विल बी अपस्केल्ड। तो आपको उतने ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डीप लर्निंग सुपर शेडिंग। द सिस्टम इज लर्निंग कि कहाँ पे मूवमेंट है और कहाँ पे मूवमेंट नहीं है। जहां पे मूवमेंट नहीं है उसको अपस्केल कर दो खट से, और जहां पे मूवमेंट है खाली उसके लिए फ्रेम जनरेट करो, और जो स्टैटिक फ्रेम है और जो चेंज फ्रेम है दोनों को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो। ओके। तो वो एक जो टेक्नोलॉजी गेमिंग के लिए आई, उससे धीरे धीरे ये पता चला कि लुक दिस कैन बी यूज्ड फॉर अ लॉट ऑफ ऑटोनोमस ड्राइविंग। कि ऑटोनोमस ड्राइविंग में क्या हो रहा है कि जैसे कोई कार रेसिंग वाला गेम है, तो उसमें सामने आपके एक सीन है, उसके अंदर एक कार ऑपरेटर चला रहा है। तो उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी उसमें लगाई गई कि ओके आई एम एनालाइजिंग कि मेरा ट्रेन क्या है, और उस ट्रेन में डिपेंडिंग अपॉन सर्टेन मार्कर्स कि ये जो कैमरा है कार में लगा हुआ, और जो कार के सेंसर से डेटा आ रहा है कि कार किधर जा रही है। सो एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, ध्यान से आप देखें तो इट्स ए गेम बीइंग प्लेड इन रियल लाइफ। हालांकि जो ऑटोनोमस ड्राइविंग के जो सिस्टम्स हैं, जो इसको बोलते हैं एसओसी, सिस्टम ऑन ए चिप, उसके जो एसओसीज हैं दे आर क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन नेचर, और उसके अंदर फॉल्ट टॉलरेंट एंड फंक्शनल सेफ्टी की बहुत जरूरत पड़ती है कि फेलियर मैकेनिज्म उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि इन अंडर अंडर एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस भी इट शुड नॉट फेल। तो जब हम लोग डिजाइन में जाके बात करेंगे कि जो कॉमर्शियल डिवाइसेस हैं उसको कैसे डिजाइन करते हैं, ये जो मैन मशीन इंटरेक्शन जो रोबोट्स और ऑटोनोमस ड्राइविंग के लिए करते हैं उसकी क्या डिजाइन क्राइटेरिया है, बहुत डिफरेंट है। उसके बाद जो सिस्टम्स डिजाइन किए जाते हैं, जो कि जैसे मान लीजिए स्पेस में भेजना है, यहाँ से रॉकेट एक इक्विपमेंट को लेके मार्स पे जाएगा, तो वो जो मार्स के ऊपर जाके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑपरेट होगा तो उसकी डिजाइन क्राइटेरिया क्या है, क्योंकि उसमें फेलियर की गुंजाइश जो है 0.00001% होना चाहिए। कि अदरवाइज आप यदि देखें कि एक रॉकेट को और सामान को मार्स पे भेजने में जो यूएस स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खर्चा है, इट इज सेवरल बिलियन डॉलर्स। तो और वहां जाके यदि वो इक्विपमेंट खराब हो गया और रीसेट ही नहीं हो रहा है, वो काम ही नहीं कर रहा है, तो ऑल दोज बिलियन डॉलर्स आर वेस्टेड। और क्योंकि रोज रोज तो आप ये चीज भेज नहीं सकते, सो द डिजाइन क्राइटेरिया और कैसे उसको वो किया जाएगा वो बहुत डिफरेंट है। अ, तो वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे।
माफ कीजिएगा, मैं स्टूडेंट्स के बिहाफ पर पूछ रहा हूँ। ये जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की चर्चा है, उसमें एनवीडिया के और कौन कौन कॉम्पिटिटर्स इमर्ज कर रहे हैं, या जो चिप टेक्नोलॉजी है उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या दिख रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा? तो हम लोग एनवीडिया के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी बात नहीं करते हैं। आई थिंक जो रेलेवेंट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है और इसका क्या विजन है, क्या कैसे वो होगा, राइट? आई थिंक दैट इज मोर रेलेवेंट क्वेश्चन इफ यू एग्री। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स ने लोगों की लाइफ को बहुत आसान कर दिया है। अब कम से कम जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या उसमें, और बहुत सारे, अब मैं देख रहा हूँ कि हिंदुस्तान में भी लोग इसको कर रहे हैं। एलेक्सा एंड गूगल होम पावर डिवाइसेस की लोगों का घर इक्विपमेंट सारा इंटरनेट पे है। फॉर एग्जांपल, मेरा घर यहाँ पे, इसमें एक एक लाइट, एक एक इक्विपमेंट जो है वो सारा इंटरनेट पे है। तो मैं दुनिया में कहीं पे भी बैठा हूँ, मैं अपने पूरे घर के किसी भी चीज को इधर उधर कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट? तो हीटिंग कूलिंग सिस्टम जो भी है, उसने बहुत सारी चीजों को प्रभावित किया है और इसमें रिसर्च बढ़ती जा रही है। एलेक्सा वाज वन ऑफ द थिंग जिसको कि आप इंटरनेट ऑफ डिवाइस कह सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस। और एलेक्सा की कैपेबिलिटी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो वॉइस असिस्टेंट से शुरू हुआ था विद वेरी लिमिटेड कमांड्स। अब धीरे 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 उसके अंदर एक स्पोकन लैंग्वेज की, जिसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल, उसकी भी कैपेबिलिटी धीरे धीरे आती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन टॉक टू एलेक्सा एंड से, एलेक्सा कैन यू टेल मी वेयर इज दिस पर्टिकुलर प्लेस? तो इट्स अ लॉन्ग सेंटेंस, यू आर नेचुरली इंटरेक्टिंग विद द डिवाइस। पहले ऐसा नहीं था, पहले था बहुत छोटा, वेयर इज दिल्ली, देन एलेक्सा विल टेल यू। बट नाउ यू कैन हैव कन्वर्सेशनल इंटरेक्शन विद एलेक्सा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में बहुत सारी चीजें हैं, ये सब आपकी अपनी इमेजिनेशन, अपनी ड्राइव कैसे उसको कर सकते हैं हम। जैसे देखिए, जिसके बारे में मैं बात करता हूँ कई जगह पे, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग इससे प्रेरित होंगे और करेंगे। एक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों ने उसके बारे में पेपर भी लिखा है, हम लोग उस स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स। तो दुनिया में स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स हैं, लेकिन आज की डेट में वो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स एलजी, हिटाची, सैमसंग, वेस्टिंग हाउस जो बना रही हैं, वो स्मार्ट रेफ्रिजरेटर यही है कि वो एलसीडी पैनल लगा हुआ है बाहर, और वो उसके ऊपर फोटो आ जाती है कि आपके रेफ्रिजरेटर में क्या चीजें हैं। अधिक से अधिक वो ये देखेगा कि अच्छा ये दूध खत्म हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली जाके आपके जो सुपर स्टोर है उसको एक ऑर्डर प्लेस कर देगा और आपके घर में दूध की डिलीवरी हो जाएगी। वो अभी तक ये स्मार्ट रेफ्रिजरेटर कॉन्सेप्ट यहीं पे ही है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, इस चीज को आगे ले जाएं, कुछ अपने कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में, या कुछ जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं वो लोग मिल के रिसर्च करें। कुछ और लोग भी हैं दुनिया में जो इस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, यदि चाहें तो उनके साथ आप लोग मिल के ये काम कर सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो खाना जा रहा है और आ रहा है उसको आप अपनी हेल्थ से जोड़िए, और रेफ्रिजरेटर को AI/ML डिवाइस बनाइए कि the refrigerator is basically your slave and it is looking at what is going in, रेफ्रिजरेटर में क्या चीज जा रहा है और क्या चीज आ रहा है और उसका यूसेज मॉडल क्या है। अब ये एक सोचने की बात है, ये बहुत बड़े रिवॉल्यूशन को ला सकती है। वो ये कि अभी जहां तक मैं समझता हूँ, कुछ एक कंट्रीज को, कुछ एक चीजों को छोड़ के जो फूड लेबलिंग है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन यदि आप ये मान के चलिए कि यदि हम एक ऐसा लेबल बनाए, सोचिए, यदि हम एक ऐसा लेबल बनाएं जिस लेबल के ऊपर ही सारा मेटा डेटा हो, उस लेबल को यदि कोई
स्कैनर या कोई कैमरा रीड करे, जैसे कि आप रेफ्रिजरेटर में वो खाना रख रहे हैं तो उसके साइड के डोर में कैमरा लगा हुआ है और वो उस लेबल को रीड कर लेता है। तो उस लेबल से उसको ये पता चला कि ये सामान कहाँ पैक हुआ है, इसका लॉट नंबर क्या है, इसका एक्सपायरी डेट क्या है, और इसकी जो अवधि है, कितने दिनों तक इसकी फ्रेशनेस रहेगी, और इसका इसका यूज और कूल साइकिल कितना हो सकता है। तो दिन में यदि आप रेफ्रिजरेटर मान लीजिए 100 बार खोलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन रेफ्रिजरेटर की कूलिंग कैपेसिटी, यदि वो 5 डिग्री से नीचे नहीं जाता है तो इसका मतलब वो खाना 2 दिन में खराब हो गया और उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है पूरी खत्म हो गई, और 3 दिन के बाद यदि आप वो खाना खाएंगे तो हो सकता है वो बीमारी को जन्म दे। तो हेल्थ रिलेटेड, और पूरी दुनिया में जो है सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव चीज जो है वो है पर्सन्स हेल्थ। तो यदि हम इसको कंट्रोल करें तो वो आपको कंट्रोल कर सकता है, आपकी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि द रेफ्रिजरेटर इज योर स्लेव, इज एन AI/ML स्लेव, एंड इट विल टेल यू कि नो नो नो, यू कांट ईट दिस थिंग एनी मोर, आपका डोज आज का हो चुका है, राइट। सो think about such thing and try to bring some sort of revolution। और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, लेकिन यदि ये हो जाता है तो आप देखिए हिंदुस्तान में इट विल ब्रिंग ए बिग रिवॉल्यूशन। ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान से फिर बाहर के मुल्कों में जाके अडॉप्ट हो सकती है। तो जस्ट फूड फॉर थॉट, ये IoT है। Now my question is related with the faculty members. Students are losing their interest to attend their regular classes. As per my analysis, if application part is missing during class hours, then students are struggling to get interest. So what about your suggestions which can be adopted by our faculty members and make their class interesting? Second part of this question is, what kind of project which you can suggest and our faculty members may assign those projects to our students, and they will apply their constructive energy to make that successful. And third question is related with students, how they can channelize energy to achieve your benchmark, how they can be directly shifted from India to US. Thank you, sir. सारे बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और जो जवाब मैं दूंगा वो कितना कहाँ पे एप्लीकेबल है इसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी लाइफ में देखा सीखा है और जिससे मुझे लगा कि इसने हम लोगों को बहुत हेल्प किया है वो मैं शेयर करता हूँ। तो पहली बात ये है कि ये बात सत्य है कि यदि सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्सेज ही चलते रहेंगे तो बच्चों का जो इंटरेस्ट है धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाए, क्योंकि वो उस थ्योरी को प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ पाएंगे। और वो जो प्रैक्टिकल है वो ऐसा होना चाहिए जो कि थोड़ा थ्योरी को प्रूव करे और दूसरा उनकी इमेजिनेशन को एक्सप्लॉइट करे। तो IIT में जब मैं था तो पढ़ता भी था, पढ़ाता भी था, और लैब में काम भी होता था। लेकिन एक अच्छी चीज जो मैंने IIT में देखी, IIT दिल्ली में, सारे IITs में ऐसा ही है, कुछ और कॉलेजेस में ऐसा होगा, आपके कॉलेज में कैसा है मुझे नहीं मालूम है, यदि ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है। वो ये था कि कोई भी बच्चा कभी भी लैब में जाके काम कर सकता है, उस पर कोई बंदिश नहीं है, रात में 1 बजे 2 बजे। लेकिन पहले हम लोग को अपने जो लैब असिस्टेंट साहब थे उनको बता देना होता था कि अच्छा सर ऐसा है कि आज रात में मुझे प्रोजेक्ट करना है, तो आज रात में 9 बजे से लेके बस जब तक नींद नहीं आएगी तब तक मैं लैब में रहूंगा, और नींद आ गई तो या तो मैं लैब में सो जाऊंगा और नहीं तो लैब बंद करके
ये जो डब्बा है, सिक्योर डब्बा है, उसमें चाबी डाल दूंगी। तो वो एक था जिससे कि हम लोगों ने बहुत सीखा, क्योंकि जब कोई चीज के ऊपर हम लोग काम करने लगते थे, और बच्चे शायद मेरी चीज से सहमत होंगे कि वो उस विचारधारा को उस समय तोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत बिजी हैं वो करने में। तो इसलिए कोई उनके ऊपर बंदिश नहीं होनी चाहिए कि अरे 5 बज गए, अब लैब बंद हो जाएगा, चलो इसको बंद करो। क्योंकि यदि वो सोचने का क्रम टूट गया तो फिर उसको रीगेन करना और फिर जाके ऊपर से वो करना, उसमें थोड़ी सी वो हो सकती है। और इससे होगा क्या कि उस उनमें एटलीस्ट मैंने ये देखा कि एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा होता है कि ऐसा जुनून सा आ जाता है कि नहीं नहीं, ये हो क्यों नहीं रहा है, इसको करना है। तो हम लोग रात रात भर लगे रहते थे, और जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, जब वो कोडिंग कंप्लीट हो जाती थी और वो मशीन काम करना शुरू कर देती थी, तो फिर थोड़ी दूर से बैठ के देख के कि वो काम कैसे कर रहा है क्या, वो बड़ा आनंद आता था। और मुझे लगता है कि ये चीज अभी भी एप्लीकेबल है कि यदि बच्चों को हम फ्री लैब एक्सेस और उस तरीके से, और मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जब इस तरीके से वो होगा, तो बच्चों को भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि जो लैब में चीज है वो उनके सीखने के लिए है, मिसयूज करने के लिए नहीं है। तो गिवन दैट, यदि वो हो, तो जो प्रैक्टिकल का जो रुझान है और वो जो सीखने की शक्ति है वो बहुत बढ़ेगी। एक नंबर वन ये है। दूसरा, जब आप इस तरीके की कुछ चीज करेंगे, जैसे कि मैंने आपको एक अभी एग्जांपल दिया स्मार्ट रेफ्रिजरेटर का, जरूरी नहीं है कि वो रेफ्रिजरेटर वहां पे होना चाहिए। वो आप उस पूरे स्मार्ट रेफ्रिजरेटर के और उसको पूरा सिमुलेट कर सकते हैं एक छोटे से सिस्टम के ऊपर। और जब उसके ऊपर पेपर पब्लिश होंगे और स्टडीज होगा, सब कुछ होगा, तो पूरे कॉलेज का नाम, पूरे बच्चों का नाम, जो फैकल्टी का नाम है वो आगे आएगा। और इससे फैकल्टी को और बच्चों दोनों में जो कोऑपरेशन होना चाहिए रिसर्च का और सीखने का, वो चीज पैदा होगी। तो वो मैं कहना चाहूंगा कि वो है। और जब ये होगा तो देखिए, यूएस जाना गोल नहीं होना चाहिए। कईयों का गोल होता है, मेरा भी गोल था, लेकिन मेरा गोल कभी ऐसा नहीं था कि मुझे यहाँ पे काम ना करें लेकिन यूएस पहुंच जाए, ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पे पहुंचा अपने काम की वजह से। तो मैं ये कहूंगा कि जब आप उस तरीके का काम करिएगा और उस चीज को पब्लिश करिएगा, ओके, तो पता चलेगा लोगों को कि ये कौन है, कौन इस तरीके का काम कर रहे हैं। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर लुकिंग टू फाइंड स्मार्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो फिर वो चलेगा। तिवारी साहब, आपके तीनों क्वेश्चन का आंसर दिया कि नहीं दिया? Yes, sir. The main problem which we are facing in India is related with mentorship, because the work which is going on in India, even we are not aware about that. So certainly we will stretch our potential to get information and utilize your energy. And please, one punching line for my students and faculty members, so that they will apply their best effort for the betterment of Bihar. Sir, can I ask one question, Sandeep ji? Please, sir. Ramesh ji, thank you so much. Very, 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 very lucid and very, very informative. I mean, I'm going to ask a more practical question because a lot of students are from computer science department at Darbhanga College. And then NVIDIA is the flavor of the season, especially in terms of doing some AI, ML, data science projects. Can we, through your offices, arrange for some cloud credits and NVIDIA GPU credits for our students? And can we give them 3 or 4 problems that they can try to solve? Maybe with some help. We also have a team of diaspora who are in the technology. We'll try to give them some mentorship, see if they can solve some real problems in the next 3 months as a project, with some support as a cloud lab, sir. It's a very good question. I'll have to find out what is NVIDIA policy in this one. How much can they disclose
on a real problem which NVIDIA is trying to solve. Okay. We normally, I know as a matter of fact that we normally don't disclose the intellectual property that we are working on right now. हाँ, लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको NVIDIA रिसोर्सेज की जरूरत है, आप अपने किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, ओके, एंड यू आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेस टू NVIDIA हार्डवेयर, तो उसके बारे में हम लोग बातचीत कर सकते हैं. देयर आर प्लेसेस वेयर NVIDIA हार्डवेयर एग्जिस्ट्स and there are other educational institutes who can help you get those resources so that you can log into their system and based on on an agreement you can use that resource time to do things. दिल्ली में ही है, आपको NVIDIA आने की भी जरूरत नहीं है. नेताजी सुभाष Institute of Technology, NSUT, something. NSIT ऐसे कुछ है. They have NVIDIA hardware. They have a full artificial intelligence ML lab, and if you make a sincere request and do this, I see no reason why they would say no. So थैंक यू सो मच. मैं सोच रहा था सर कि जैसे NVIDIA के पास बहुत सारा ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स होंगे या बहुत सारे ट्रेनिंग के कोर्स का मटेरियल होगा, प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि हमारे दरभंगा के बच्चे जो हैं वो अगर वो उस प्रॉब्लम्स को भी एक मॉडल मिक्स सिमुलेट कर लेंगे ना लैब में या क्लाउड लैब में, तो उनके लिए बहुत एक हैंड्स ऑन लर्निंग का एक रास्ता खुल जाएगा कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करके बाहर निकल रहे हैं. तो अगर कोई भी सपोर्ट उनको मिल जाए तो बहुत बहुत काम आएगा. okay, let me look into it. थैंक यू सो मच. Any question? Please. गुड मॉर्निंग सर. सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आजकल मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, तो उसमें सर जितना भी कॉम्पैक्ट चिप लग रहा है उसका हीटिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है. तो सर उसको कूल करने के लिए वर्ल्ड वाइड में कौन सा मेजर टेकअवे लिया गया है, ऐसा मेजर स्टेप लिया गया है? सर इसी पे मेरा प्रोजेक्ट है. थैंक यू सर. हाँ, तो ये बहुत ही एक ज्वलंत समस्या है कि जैसे जैसे जो SOC है उनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, तो वो पावर भी बढ़ता जा रहा है, और कैसे उसको कूल करें. तो इस डायरेक्शन में बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं. यदि आप गूगल सर्च करेंगे तो उनकी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता चलेगा कि जैसे ये चिप है, तो इसमें जो आपका जो सिलिकॉन है, ये देखिए एक्सपोज्ड सिलिकॉन है, राइट. दिस इज कॉल्ड बेयर डाई, मतलब ये डाई जो है पूरा खुला हुआ है, और इसको कूल करने के लिए दो तरीके हैं. एक तो यही है कि इसके ऊपर कोई हीट प्लेट लगा दिया जाए विद थर्मल मटेरियल इन बिटवीन. जो थर्मल मटेरियल है पेस्ट, वो डाई को टच करेगा, उसके ऊपर हीट प्लेट लगेगी. हीट प्लेट से फिर आप कोई हीट पाइप ले जाएंगे और फिर किसी हीट एक्सचेंजर में ले जाके उस पर फैन वगैरह लगा के. या एक नई कंपनी आई है, वो व्हाट दे डू, दे हैव, उन लोगों ने एक हीट सिंक जैसा डिवाइस बनाया है, और ऑब्वियसली उन लोगों की प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी, तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जितना मैं जानता हूँ उसमें क्या है कि वो एक फैन है, उसके अंदर कंप्रेसर, जैसे कॉल इट ए कंप्रेसर. तो वो कंप्रेसर क्या करता है कि जो उसके अगल बगल की हवा है, उसको हवा को लेके कंप्रेस करके उसको बहुत ही
फाइन जेट्स में धीरे धीरे जैसे हवा का एक प्रोब है ना, हवा मतलब एक गोली की तरह हवा आएगी और बेयर डाई को टच करके और निकल जाएगी, और फिर वो रुक जाएगा, और फिर विद इन 1 मिली सेकेंड वो फिर एयर बर्स्ट ऑफ एयर बेयर डाई के ऊपर वो करते हैं। तो ये सब तरीके हैं। जो सबसे प्रचलित है वो हीट पाइप और हीट एक्सचेंजर वाला है, एंड दिस इज वेयर आई थिंक यू शुड, आप सोचें इसके बारे में कि और क्या तरीका हो सकता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ बात करें कैसे क्या हो। Sir, I have worked on this liquid nitrogen. If Hmm. we will supply liquid nitrogen, then certainly it will carry heat very rapidly. One side it will introduce and another side it will go exit. So that will increase that will increase heat transfer rate as compared to simple air. हाँ, तो उसके अंदर तिवारी साहब यही सोचना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले कहा कि क्या ये टेक्नोलॉजी, ये इस पूरे कॉमर्शियल वर्ल्ड में थियोरेटिकली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हम लोग इजाद कर सकते हैं, लेकिन क्या वो सक्सेसफुल होगी? वो तभी सक्सेसफुल होगी जब उसको लोग अडॉप्ट करेंगे। लोग उसको अडॉप्ट कब करेंगे? उसके दो सबसे बड़े कारण हैं। एक कि वो फाइनेंशियली अफोर्डेबल होना चाहिए, दूसरा स्पेस वाइज वो अफोर्डेबल होना चाहिए। तो जैसे लिक्विड कूलिंग, लिक्विड नाइट्रोजन और इन सब 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 हैं, दे आर देयर, दे एग्जिस्ट टुडे, बट दे एग्जिस्ट फॉर सुपर कंप्यूटर्स, दे आर देयर इन क्रे सुपर कंप्यूटर्स, जिसमें कि पूरा का पूरा सीपीयू मॉड्यूल जो है वो लिक्विड नाइट्रोजन में डुबा देते हैं, राइट। लेकिन यदि हम यहाँ बात कर रहे हैं एक कॉमर्शियल लो कॉस्ट मैकेनिज्म की, जो कि आपके लैपटॉप में है, या जो आपका कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो कि आपके टेबल के नीचे है या टेबल के ऊपर है, यदि हम उन सिस्टम्स की बात करें तो ये एक आध कंपनियां हैं जो कि माइक्रो कंडेंसर और कंप्रेसर वगैरह बना रही हैं, दे कॉल इट लिक्विड मेटल। सो रादर देन लेटिंग द लिक्विड नाइट्रोजन गो, क्योंकि यदि वो फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको हम कैसे प्रेशराइज करके वापस लिक्विड फॉर्म में लाएंगे। एंड देन यू हैव टू लुक एट कि द एनर्जी यू आर पुटिंग इन to get this thing done, is that energy much more than the energy that you are trying to take away? So यदि if it is not a neutral, if it is not carbon neutral, जितना दे रहे हैं उतना ले रहे हैं वो बेस्ट है, राइट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। तो यदि कार्बन न्यूट्रल नहीं है तो फिर वो टेक्नोलॉजी नहीं चलेगी आगे। सो थ्योरेटिकली यस, यू आर राइट, you can cool things using liquid nitrogen and it will cool it really fast, very good, but is that affordable? And is that can that be made in a form factor that can reside in these? यदि आप लोग ऐसा कर लें कोई टेक्नोलॉजी ऐसी बनाए, that's it, there will be companies lining up behind you. Thank you, sir. Initially, there were a lot of disturbance due to some technical issues, but the way it has been started and concluded, that was really amazing, very smooth, and no disturbance at all. And with folded hands, I would like to say thanks for sparing your time, because ये वहाँ रात होगी और आप अपना रेस्ट करने वाला टाइम आपने हमें दिया है। अब इसमें यही है कि what kind of support may be extended for research projects or to create some center of excellence where obsolete materials or devices can be provided to DC Darbhanga, and we will keep it for our study purpose and research purpose. Because technology is dynamic in nature, every hour, every day it's changing. And whenever you want to throw something out, then we have a lot of space to manage, and that will be very useful for my faculty members and students. And I am very thankful to Neerja ma'am, Arvind sir, Pradeep sir, and
all my mentors for extending their support. That's why I am comfortable to prove myself. And I am committed to make DCE the best college, and my student will write good success stories worldwide. Thank you, sir. Good night. Wonderful. Namaskar. Thank you, sir. everyone. Thank you, everyone. This was just a starting discussion. I hope as we go on this journey, our discussions will become better and better. And always, please don't feel shy in asking any question, because this is a new chapter in your life. You are learning. You are still in the learning phase. As I say that some people think that I have learned enough, I have done enough, and all that. No, that is not true. I learn on a daily basis. Okay, so I think that applies to everyone, every single individual in the room, that you all are learning on a daily basis. The day you declare that I have stopped learning, you will become obsolete. Okay, the train of technology, the train of development, the train of progress is moving really fast. If you want to catch up with the world, if you want to succeed, in this race, you have to learn. You have to improve your level on a daily basis. Okay, so with that, I would say, keep doing the good work, keep pushing yourself to cross those boundaries, and never ever let the inquisitiveness in you go away. Okay, always question in your mind, why is it done this way, and can I do this thing better? That will take you, and that will push you on that path, to achieve your dreams. The day you stop asking these two questions to yourself and make yourself irrelevant in that process, even though you will have a degree, you will not go anywhere. So I don't want to scare you, but this is the fundamental thing in an engineer's life, that you have chosen this life, and therefore it is going to be a continuous learning, and you will enjoy it. Well, there may be things in the beginning where it may discourage you, but as I said, that please don't be discouraged. You should learn from the failures. You should never be afraid of the failures, but learning from the failures is the key thing, and then move on. So with that, I would end my talk for today. Thank you very much for giving me this opportunity, every one of you, and have a great day. Thank you. Bye-bye. Now I would like to request Nirja ma'am, few words from your side, because you have extended your support, you have created this group. So we want to listen you also, and certainly in coming days, what kind of expertise you have earned, and what benchmark you have earned in your life should also be shared for my girl student, because we have around 250 girl students in our college out of 1100. And now, Honorable Chief Minister, sir, already assigned 33% seats for girls. So now the admissions are increasing day by day. Last year, we have received only 40 admissions, whereas last year we received 100 girl students. So you can easily understand it has been multiplied by 2.5 times. So this time again, this number will increase, and we will continue with this. Please, ma'am, over to you. Ma'am, you are mute. Okay, yeah. Hi, Nimesh. Thank you. It was really awesome listening you. So, संदीप जी और प्रदीप जी, ये क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपकी टीम को जाता है. आप लोगों ने
ने इतना बड़ा ये लिया, इनिशिएटिव लिया, और हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्राउड फील करते हैं कि हमारा बिहार जो है अ, तरक्की के रास्ते पे है। मेरा जब टर्न आएगा, अब प्रदीप जी को कहा था मैं अपने सब्जेक्ट एंड अपने जर्नी के बारे में मैं शेयर करूंगी, लेकिन मैं यही कहूंगी मैं भी बिहार के एक छोटे से शहर गया की हूँ, और गया से फिर मैं दिल्ली पढ़ने गई, फिर मैं यूएस आई, तो मेरी जर्नी बहुत मुश्किल अ, संघर्षों से भरा हुआ था। लेकिन मैंने उस चीज को एक्सेप्ट किया, चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और हमारे जमाने में मैंने मास्टर्स इन फिजिक्स किया। उस समय खाली जो अभी अनिमेश ने बताया थियोरटिकल ही होते थे, प्रैक्टिकल लैब्स वगैरह एकदम नहीं होते थे। 8085 पहला प्रोसेसर था मेरा, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजर था, लेकिन हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि क्या है कंप्यूटर, क्या है लैब में, ना कंप्यूटर था ना चिप्स की तो बात ही दूर है। तो एनीवेज मैं लड़कियों को स्पेशली आई टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, और टुडे इज महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, तो मैं सारी लड़कियों को स्पेसिफिकली, लड़कियों को मैं मुबारक देना चाहूंगी कि आज इतने नंबर में आप लोगों को मैं देख रही हूँ, लड़कियां हैं इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, कॉलेज में, डीसी में, लड़कियों को देखना बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही हम लोग गौरवान्वित हो रहे हैं। हमारे जमाने में जब मैं इंजीनियरिंग में या अगर प्योर साइंस पढ़ रहे हैं, मैं मेरा फिजिक्स था थ्रू आउट हाई स्कूल से लेकर मास्टर्स तक, सिर्फ मैं एक अकेली लड़की होती थी। It was very tough time. We did not have resources. We did not have right teachers in Bihar specifically. आप लोग लकी हैं कि आप लोग के टीचर्स, गुरुजी, सारे लोग चाहते हैं कि बिहार जो है वो उन्नति करे, तरक्की करे। हम लोग भी अभी बिहार से आए, घूम के आए, दरभंगा भी हम लोग गए थे। ये हमारा भी ड्रीम है, एम्बिशन है कि हम लोग बिहार को कैसे ऊपर लेकर जाएं। बाकी सारे स्टेट से मैंने देखा है सुविधाएं हैं, बहुत तरह के जो इश्यूज बिहार में है एजुकेशन में वो बाकी जगह कम है। इसलिए आप सभी को मेरा यही है आप लोगों से वो रिक्वेस्ट है, और ऑफ कोर्स आप लोग इस दिशा में काम कर रहे हैं, मेहनत कीजिए, और जैसा अनिमेश ने कहा क्यूरोसिटी होना बहुत जरूरी है। पढ़िए, एम जिंदगी में एक लक्ष्य बनाइए। क्या इंसान, इंसान तो बन ही गए आप लोग, इंसान, अच्छे इंसान बनना नंबर वन हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन उसके अलावा, इंसान बनने के अलावा, क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है जहाँ हम रहते हैं, हमारी क्या जिम्मेदारी है अपने समाज को, अपने देश को, अपनी दुनिया को, अपने अगल बगल के लोगों को हम लोग आगे बढ़ाएं, आगे लेकर जाएं। तो उसके पीछे एजुकेशन ही एक टूल है जो कि लोगों को उन्नति के रास्ते पे लेकर जा सकता है, लोगों को एक इंसानियत की भाषा भी सिखाता है एजुकेशन जो है। स्पेशली इंजीनियरिंग में, साइंस में मैंने लड़कियों को, बहुत कम लड़कियों को देखा है। तो आप लोग जो हैं, आप लोग को बहुत बड़ा टूल मिला है, साइंस पढ़ना, प्योर साइंस पढ़ना, इंजीनियरिंग पढ़ना, और उसको अडॉप्ट करना बहुत बड़ी बात है। तो आप लोग जो हैं आगे बढ़िए। और हम लोग हैं, सब साथ में हैं, हम लोग भी जो है इस नोबल कॉज को, आपके प्रिंसिपल साहब ने, प्रदीप जी ने जो इनिशिएटिव लिया है उसमें हमारा भी योगदान होगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब मिलूंगी तो मैं अपने बारे में बताऊंगी। फिलहाल मैं आजकल इंफॉर्मेशन, मैं प्योर आईटी में थी, फिर उसके बाद आईटी से मैंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी मैंने काम किया। फिर उसके बाद अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग फॉर क्लाउड आर्किटेक्चर, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन AWS। तो मैं बताऊंगी कि क्या क्या, जब मैं यूएस आई तो मैंने काफी स्कूल कॉलेजेस गई, तो मैं बताऊंगी कि क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आप लोग पढ़ें,
क्या स्पेसिफिक करिकुलम होना चाहिए जो कि लोकल कॉलेजेस के बच्चे जो हैं उनको और इंटरेस्ट डेवलप हो, और वो कंपैटिबिलिटी होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका आगे क्या यूज है, उसका क्या आगे वैल्यू है। सिर्फ पढ़ रहे हैं और फिर मास्टर्स किया, इंजीनियरिंग किया, कुछ नहीं आपके हाथ में है। आपने सीखा तो, लेकिन थियोरेटिकल नॉलेज था, जॉब ओरिएंटेड नहीं था। तो वॉट एवर यू स्टडी इट्स सपोज टू बी जॉब ओरिएंटेड एज वेल, मस्ट बी वेरी इंटरेस्टिंग, इट मस्ट बी हेल्पिंग people, your state, your country and everyone. तो आप लोग ऐसे ही जो है पहले अपनी क्यूरोसिटी को जो है उसको समझना, तो टेक्नोलॉजी और ये सब ज्यादा मुश्किल नहीं रह गया है। आपके पास एक सिंपल कंप्यूटर होना चाहिए, सिर्फ वो राइट राइट एजुकेशन पर फोकस करें, और जो कि आपको जो है आगे उसमें मदद मिल सकता है। क्या करिकुलम होगा, कैसे प्रोग्राम्स होंगे, स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल साहब के साथ मिलकर बात करके सारे एज अ कम्युनिटी हम लोग बात कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग, कोडिंग जो यहाँ पर हॉट है उसमें हम लोग हेल्प कर सकते हैं उसमें जो है। और आप लोगों को अगर किसी को इंटरेस्ट है बाहर जाने की, काम करने की, पढ़ने की, उसमें भी आपको हेल्प मिल सकता है। तो बस आप लोग ऐसे ही पॉजिटिव रहें और मेहनत करते जाएं, और जब नेक्स्ट टाइम मौका मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बताऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच प्रदीप जी, संदीप जी, अरविंद जी, आप लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोगों के स्टूडेंट्स के आगे हम लोग बातें करें, आपके फैकल्टी मेंबर्स के आगे हम लोग कुछ कहें। तो ये जर्नी हमारी जो है तो अभी तो शुरुआत हुई है, आगे हम लोग और भी इसके लिए जो है इस इनिशिएटिव के लिए और कुछ भी हम लोग करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. थैंक यू, थैंक यू। Ma'am, Animesh sir, Shri Arvind Jha sir is also our mentor and advisor to DC. We are also sending letter for the same to both of you. And I would like to request Arvind Jha sir, please introduce yourself for 2 minutes so that everyone can understand about your expertise. He is not here. Hmm? I would like to request Pradeep ji to say a vote of thanks. बहुत बहुत धन्यवाद अनिमेश जी और नीरा, आप लोगों ने इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। अगला आपके इससे इंस्पायर होकर के अगला कार्यक्रम ऑटोमोबाइल सेक्टर पर मनीष प्रसाद प्रेजेंट करने जा रहे हैं, और हमें लगता है कि ये सिलसिला आगे चलेगा। हम चाहते थे कि महीने में 2 हो, लेकिन महीने में 2 नहीं हो पाएगा क्योंकि 23 तारीख को होली के आसपास का समय है और यहाँ छुट्टी होगी। इसलिए 6 अप्रैल को हम लोग मनीष प्रसाद से सुनेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर में क्या नया टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है, ये हमारे टेक्नोलॉजिकल इमेजिनेशन को फायर करता है। इसलिए और हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमें और चुनकर लोगों को दीजिए कि कौन लोग इस तरह से टॉक दे सकते हैं और थोड़ा और टेक्निकल कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसको एक टेक्निकल डायमेंशन दे सकते हैं, क्योंकि ये इंजीनियरिंग की स्टूडेंट है। इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा इनके पास टेक्निकल भी जो है वो इनपुट जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। एडमिन शट डाउन प्लीज। थैंक यू, शुक्रिया। बाय बाय। एडमिन शट